Hello everyone, welcome in Simple Mathematics channel. Today I am going to start with determinant chapter. That is very important, and in determinant we have seen in previous standard also. In standard 10th we have seen 2 by 2 determinant. So I'll start with this. So we are going to start with determinant. Okay, so first we will see what is determinant, what is 2 by 2 determinant, what are the elements of determinant, and what are the standard elements of determinant. Okay, so we have seen A, B, C, D, this type of determinant in standard 10th, correct? And what is value of this determinant? Value of this determinant is AD minus BC. A into D minus B into C. Correct? AD minus BC. This is the value of this 2 by 2 determinant. Why it is 2 by 2 determinant? Because there are 2 rows and 2 columns. This is row 1, row 2, and this is column 1, column 2. So there are 2 rows and 2 columns, hence it is a determinant of order 2. And what is value of this determinant? Value of this determinant is AD minus BC. These are the general elements. Now we will see what are the actual and standard value or standard elements of determinant. So the standard elements of determinants are A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is determinant of order 3. Why? Because there are 3 rows. This is row 1. This is row 2, this is row 3, and this is column 1, column 2, column 3. Okay, so there are 3 rows and 3 columns. Okay, so what is the meaning of A11? Meaning of A11 is element of row 1 and column 1. So then, what is meaning of A11? Is element of row 1 and column 1. तो element of row 1 and column 1 means यही element है. इसको हम A11 बोल सकते हैं क्या? नहीं, because this is A12. A12 means element of row 1 and column 2. A13 element of row 1 column 3. Then A21 element of row 2 column 1. A22 means element of row 2 column 2. A23 means element of row 2 column 3. Then A31 means element of row 3 column 1. Then A32 element of row 3 column 2. A33 means element of row 3 and column 3. So यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हमने लिखा है ये सब क्या है? स्टैंडर्ड एलिमेंट्स. यहाँ पे हर एक एलिमेंट की मीनिंग है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो हमने इसको आप A11 रीड नहीं कर सकते हो, इसको आपको A11 ही रीड करना है. समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या रीड करेंगे? A11 ही रीड करेंगे. बिकॉज A11 मीन्स एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1. और समझ में आया कैसे रीड करना है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ये क्या हो गया? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. समझ में आया? फिर उसके बाद यहाँ पे जो A11, तो यहाँ पे एक्चुअली जो जनरल एलिमेंट होता है वो होता है Aij. जनरल एलिमेंट क्या होता है? Aij, where I is row
and J is column. समझ में आ रहा है? Where I is row and J is column. So AIJ जैसे यहाँ पे A11 हमने लिखा है, तो फर्स्ट वाला क्या है रो एंड सेकंड वाला है कॉलम, इसीलिए एलिमेंट ऑफ रो 1 एंड कॉलम है। समझ में आया? तो एलिमेंट्स को इन जनरल कैसा लिखते हैं? AIJ के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो क्या हो गया? रोज एंड कॉलम्स, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में भी आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो क्या हो जाएगा? A11, A12, A21, A22। समझ में आया? ये हो गया जनरल एलिमेंट्स। अब जैसे आपको 2x2 डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता ही है, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, और इसका सॉल्यूशन भी सिंपल, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों के बीच में यहाँ पे नेगेटिव का साइन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो हम लोग देखते हैं कि 3/3 के डिटरमिनेंट को एक्सपांड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। समझ में? तो इसको एक्चुअली एक्सपांशन के टोटल 6 मेथड्स हैं। एक्सपांशन के कितने मेथड्स हैं? 6 मेथड है। जैसे एक्सपांशन अलोंग रो 1, एक्सपांशन अलोंग रो 2, एक्सपांशन अलोंग रो 3, और एक्सपांशन अलोंग कॉलम 1, एक्सपांशन अलोंग कॉलम 2, एक्सपांशन अलोंग कॉलम 3। तो ये टोटल 6 मेथड है, बट टोटल 6 मेथड में से जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इन सबसे जो कॉमन मेथड है वो मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो कॉमन मेथड है जो हम लोग यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए, वो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे A11 लेंगे। अभी क्या लेंगे हम लोग? A11 मींस ये फर्स्ट एलिमेंट, और ये A11 लेने के बाद जो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हमको हाइड कर देना है। क्या करना है? ये जो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड कर देना है। तो जो बचेगा मींस ये हाइड करने में हमारे पास क्या बाकी बचा? हमारे पास बाकी बचा A22, A23, A32, A33। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग A22, A23, A32, A33। समझ में आया? पहले हम लोग क्या लेंगे? A11 लेंगे, फिर A11 लेने के बाद ये कॉलम एंड ये रो हमको हाइड कर देना है। हाइड करने के बाद हमारे पास A22, A23, A32, A33 बचा, इसको हम डिटरमिनेंट को लिख देंगे। ओके, फिर इसके बाद हमको क्या लेना है? माइनस लेना है। चलो, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग? माइनस। माइनस के बाद A12 मींस ये आएगा यहाँ पे, A12 लेंगे हम। ओके, A12 लेने के बाद A12 वाला यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम और ये फर्स्ट रो ये हाइड कर देंगे। समझ में आ रहा? ये कॉलम मींस ये सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड कर देंगे। तो ये हाइड करने के बाद क्या बाकी बचा हमारे पास? A21, A31 मींस A21, A31 और ये A23, A33। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइम हमने माइनस किया, और A12 लेने के बाद A12 वाला कॉलम और A12 वाला रो हमने हाइड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस, पहले माइनस आएगा फिर इसके बाद प्लस आएगा, प्लस A13। ओके, A13 लेंगे तो A13 लेने के बाद A13 वाला कॉलम और A13 वाला रो मींस ये और ये हम क्या करेंगे? हाइड कर देंगे ये पूरा। तो क्या बाकी बचा हमारे पास? ये कॉलम सॉरी ये रो और ये कॉलम हाइड करने के बाद हमारे पास बाकी बचा A21, A31, A21 मींस ये A21, A31 एंड A22, A32, A22, A32, ये बाकी बचा। समझ आया? यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे? ये एज इट इज, ओके, ये एज इट इज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ये तो अब देखो 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया, तो 2/2 के डिटरमिनेंट को हम लोग जैसे सॉल्व करते थे अब वैसे सॉल्व कर देना हमको। तो क्या हो जाएगा? ये A22 into A33, A22 into A33 माइनस A23 into A32, A23 into A32। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये माइनस एज इट इज, माइनस A12
अब यहाँ पे वापस से क्रॉस 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, A23 इंटू A31 ये हो गया। उसके बाद ये प्लस A13 हमने लिया। अब वापस यहाँ पे A21 इंटू A32, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। समझ में आया? फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये होने के बाद पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे बाहर जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। A11 लेंगे, A11 लेने के बाद A11 वाला रो, A11 वाला कॉलम हाइड करेंगे। ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, ये 4 एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। फिर फर्स्ट टाइम यहाँ पे माइनस आएगा, फिर फर्स्ट टाइम माइनस आने के बाद A12 लेंगे, A12 के बाद A12 वाला कॉलम, A12 वाला रो लेंगे, हाइड हो जाएगा। क्या बाकी बचा, A21, A23, A31, A33 हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस A13, तो A13 लेने के बाद A13 वाला कॉलम और A13 वाला रो हाइड हो जाएगा। क्या बाकी बचा, A21, A22, A31, A32, इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। ओके, फिर इस बार ये देखो 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो 2/2 के डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड करते जाएंगे। फिर इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद यहाँ बाहर जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? तो एक क्या था, ये एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 ऑर्डर। समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बेसिस पे कि 3/3 के डिटरमिनेंट के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको क्या लेना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, ये 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना था हमको, 1 लेने के बाद 1 वाला कॉलम, 1 वाला रो हमको हाइड करना है। तो क्या बाकी बात चाहिए हाइड करने के बाद, 1 2 3 1, करेक्ट, 1 2 3 1। नाउ माइनस, फर्स्ट टाइम हमको माइनस लेना है, तो माइनस लेने के बाद ये 2, फिर क्या बाकी बचा हमारे पास, 2 लेने के बाद 2 वाला कॉलम, 2 वाला रो हाइड कर देंगे। तो क्या बाकी बचा, 3 2 2 1, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे, 3 2 2 1 2 1। ओके, फिर इसके बाद हमको क्या लेना है, प्लस, प्लस लेने के बाद ये 3 आएगा, प्लस 3 वाला कॉलम, 3 वाला रो हाइड कर देंगे। तो क्या बाकी बचा, 3 1 2 3 3 1 2 3। ओके, ये हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये 1 एज इट इज, अभी 2/2 का डिटरमिनेंट है, तो इसको 2/2 का मेथड सॉल्व करेंगे। नाउ 1 into 1 is 1 minus 2 into 3 that is 6, 2 3 is 6। यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, हम लोग कभी कभी जल्दी में क्या करते हैं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमको लेफ्ट टू राइट जाना है। मीन्स पहले 1 into 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 2 into 3, उसके बाद ये माइनस 2 एज इट इज, 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 3 जा 9 1 2 जा 2 माइनस 2। समझ में? फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो 1 minus 6 is -5, then -2, 3 minus 4 is -1, plus 3, 9 minus 2 is 7. So 1 into -5 is -5, minus minus plus, so it is +2, and 3 7s are 21. So 21 plus 2 is 23, 23 minus 5 is 80। समझ में है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। और ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज ये आपको जो इसी से रिलेटेड जो चैप्टर है
मैट्रिसेस में आपको ये यूज़ होने वाला है। फिर इसके बाद आप अगर इंजीनियरिंग वगैरह में भी जाते हो या फिर डिप्लोमा भी करते हो तो वहाँ पर भी आपको इसके एप्लीकेशंस वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये बेसिक्स है, आज हमने क्या देखा, बेसिक्स देखा। तो ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3x3 की ट्रीटमेंट को कैसे सॉल्व करना है। तो इसको आप अच्छे से करिए, फिर उसके बाद जो बाकी के जो आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, थैंक यू।